This is the fourth part in our introduction to database management systems. In this part, we are going to discuss about ER model, that is entity relationship model, and how this model is important for understanding the basic structure of our databases. Okay, we already know what actually data model is. Still, we are going to revise that thing in the beginning, and then we will immediately jump to ER model. Second thing that we are going to discuss is types of attributes, like what are attributes and what are its types. Some sample ER diagrams, like how ER diagrams are created, we will see that also. Apart from that, we will also see entity set and relationship sets. We will also discuss these keywords like what is an entity, what is an attribute, what is relationship. Okay, so we are going to discuss these things also, and we will try to wrap up this session with mapping cardinalities and types of keys. Okay, so before wasting any more time, let's jump to our first, that is revision of data model. What is data model? Data model is the conceptual model that we created for modeling our database. Like we tried to create a blueprint of a database without the actual data. Okay, that can be done with the help of data model. So when we talk about data models, we used different data modeling techniques, but here we are going to discuss a specific data modeling technique, that is entity relationship data model. Now, why data models are needed? Now, without data models also we can create the databases, but it has its specific usage. Okay, if you see over here, sorry for this disturbance. Okay, so if you see its usage over here, the databases, okay, they did not include implementation details. Like if I want to create, if I'm creating a data model for, let's say, a university database for Krishna Engineering College. Let's say I want to implement a data model for a database created for Krishna Engineering College. In that case, what that data model will consist of? It will consist of how many number of tables that are going to be created, what kind of relationship is going to be there between those tables. All of those things will be included in this particular data model. Okay, so here what I will say, I will try to explain like what is the main purpose of data model. Data model is helps non-technical user to understand what actually your database is going to do. Suppose मेरे पास कोई पार्टी आती है, they want to get their database done for building an application. अब उस पर्टिकुलर पर्सन के पास हो सकता है टेक्निकल नॉलेज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना के दिखाना है कि वो उसे भी समझ में आए कि हाँ भाई, आपका एप्लीकेशन है, उसमें इतने पेजेस होने चाहिए, और ये पेजेस जो डेटा एक्यूमुलेट करेगी वो इस प्रकार से इन डेटाबेस टेबल्स में जाएगा. अब अगर मैं पूरा ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स में अगर उसको बताऊंगा तो वो उसके समझ में ही नहीं आएगा, तो वो मेरे से काम ही नहीं करवाएगा. हो सकता है ऐसा पॉसिबल, राइट? लेकिन यहाँ पर वेट अ सेकेंड गाइस. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा मॉडल, व्हाट हैपेंड कि जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनका जो डेटाबेस बनने वाला है उसमें कितने टेबल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, और उनका एप्लीकेशन कैसे इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने वाला है. सो डेटा मॉडल्स हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद द नॉन टेक्निकल यूजर्स ऑल्सो, और बहुत ईजी तरीके से हमें समझ में आता है, इसीलिए हम लोग डेटा मॉडल्स यूज करते हैं. It also enables database design to specifying properties of the data without being concerned about storage details. देखिए, जब हम डेटाबेस एक्चुअल में बिल्ड करते हैं तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि स्टोरेज कितना है, और ये डेटाबेस बिल्ड होके कितना ग्रो करेगा, कितना इसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा, कितने डेटा की जरूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप डेटाबेस डिजाइन करते हो. लेकिन यहाँ पे जब आप डेटा मॉडल बनाते हो तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना नहीं पड़ता. ओके, सो अवर next topic is some of the modeling, like what is modeling, the same things that we have just discussed. What is a data model? A database can be modeled as collection of entities, relationship among entities. So these are, see here, these are the keywords. Okay, जब हम database की बात करते हैं तो database हम किस terms में कहेंगे? हम कहेंगे database
ईआर मॉडल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ईआर मॉडल कैसे काम करेगा? ईआर मॉडल आपका काम करेगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर। सो हियर लेट्स से एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो डेटाबेस का टेबल है, सपोज मेरे पास ये डेटाबेस का एक टेबल हो गया, सपोज दिस इज टेबल एक्स, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? सो दिस एक्स इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग वी कॉल इट एन एंटिटी। ये जो टेबल का नेम है, जैसे मेरे को अगर सपोज स्टूडेंट नेम का टेबल क्रिएट करना है, तो स्टूडेंट नेम के टेबल को मैं जो स्टूडेंट नेम दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट मेरी एंटिटी बन जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स गिवन है, ठीक है, ये कॉलम्स क्या है? ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। क्यों एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स दैट मींस दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टेबल। ये एक्स टेबल है, उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि भाई स्टूडेंट टेबल है, उसमें आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे मैं मॉडलिंग की बात करता हूँ, तो मॉडलिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर मॉडलिंग की हेल्प से, मॉडलिंग टेक्निक की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो डेटाबेस है, उसके अंदर जो टेबल्स हैं, उन्हें हम किस प्रकार से बुलाएंगे? एंटिटी। तो एंटिटी की अगर बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाए, तो व्हाट इज एन एंटिटी? इट इज एन ऑब्जेक्ट और अ कंसेप्ट, ओके, which exists in a real world and about which we are going to store the information। आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हो कि कोई भी रियल वर्ल्ड कंसेप्ट हो गया या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, जिसकी इंफॉर्मेशन आप एक्चुअल में डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज एन एंटिटी। और अगर उस एंटिटी की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, दैट कैन बी टर्म्ड एज इट्स एट्रीब्यूट्स। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई मुझे कार के बारे में डेटा स्टोर करना है, तो कार रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, और मैं उसका अगर डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, और उसके अंदर फिर कार का आईडी हो गया, कंपनी नेम हो गया, ये सारी उसकी क्या होगी? प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये क्या हो गया? आपका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बेस पे आपने एंटिटी का अपने एट्रीब्यूट स्टोर करवाया, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एक रियल वर्ल्ड कंसेप्ट की, जैसे कि जॉब, तो जॉब कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, आप उसे टच या फील नहीं कर सकते, लेकिन वो एक कंसेप्ट है, राइट। तो उस कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन अगर आप स्टोर करवाते हो, दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एंटिटी। तो जॉब भी यहाँ पर हमारे पास एज एन एंटिटी रहेगा, और उसमें आप जो भी कॉलम्स क्रिएट करोगे, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होंगी, दे विल बी टर्म्ड एज इट्स एट्रीब्यूट्स। एक और टर्म यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज एंटिटी सेट। व्हाट इज एन एंटिटी सेट? एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंटिटी सेट उसे कहेंगे कि अगर मेरे पास एक ही प्रकार की एंटिटी है, उन्हें मैं ग्रुप कर देता हूँ, उन्हें क्लब कर देता हूँ, और एक ही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में एक ही टेबल में या एक ही पर्टिकुलर सेट में मैं स्टोर करवाता हूँ, दैट कैन बी टर्म्ड एज एन एंटिटी सेट। जैसे मेरे पास, मैं बोलता हूँ आपको कि मुझे स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए, तो स्टूडेंट तो मेरा एंटिटी हो गया, लेकिन उसके अंदर हर स्टूडेंट की जो डिटेल है, दैट कैन बी टर्म्ड एज एन एंटिटी सेट। वैसे मैंने अगर कहा कि भाई कंपनीज, तो एक कंपनी की अगर इंफॉर्मेशन है, दैट इज सिंगल एंटिटी, लेकिन मैं बहुत सारी कंपनीज का डेटा वहां पे अगर स्टोर करवाता हूँ एक पूरे एंटिटी, देन इट विल बी टर्म्ड एज एंटिटी सेट। सी हियर द डिफरेंस, ठीक है। मैं अगर सिर्फ स्टूडेंट बोलता हूँ, तो वो एक एंटिटी सेट होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट ऑफ AKTU, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही KEC का स्टूडेंट की लिस्ट नहीं मांग रहा मैं, KEC का भी हो गया, ABES भी हो गया, काइट भी हो गया, ये सारे कॉलेजेस का अपना अपना स्टूडेंट टेबल होगा। सो ऑल ऑफ दोज एंटिटीज, they are called set of student entity। I hope this is not confusing to you। entity is different। entity मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसकी जो भी रियल वर्ल्ड कंसेप्ट है, जिसका इंफॉर्मेशन आप टेबल में स्टोर करना चाहते हो। जैसे स्टूडेंट है, एक रियल वर्ल्ड एक कंसेप्ट है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं टेबल में स्टोर करना चाहता हूँ, देन आई विल कॉल इट एन एंटिटी। लेकिन जब मैं हर कॉलेज के स्टूडेंट टेबल की बात करता हूँ, तो हर कॉलेज में जो स्टूडेंट टेबल है, उसमें सेम प्रकार का इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, राइट। तो ऐसे में जो सेम प्रकार का जो डेटा शेयर करते हैं, या सेम प्रकार का इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऐसे एंटिटीज को हम एक सेट में क्लब कर सकते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? एंटिटी सेट्स, ठीक है। वही की टर्म्स यहाँ पर सी हियर। एंटिटी इज व्हाट? इट मे बी एन ऑब्जेक्ट विथ फिजिकल और कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस। फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या तो फिर कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, पर्सन, कार, एम्प्लॉय, दे आर द फिजिकल एम्प्लॉय, द फिजिकल
ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। जॉब, यूनिवर्सिटी कोर्स, जॉब को टच नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी कोर्स को टच नहीं कर सकते। ऐसे में वो जो इंफॉर्मेशन है दैट इज व्हाट दे आर कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स। attributes are what? Attributes are the properties of that particular ER मॉडलिंग टेक्निक, या फिर हमारा जो डेटाबेस है उसमें जो भी प्रॉपर्टीज या कॉलम्स आप क्रिएट करते हो दैट कैन बी टर्म्ड एज एट्रीब्यूट्स। वहीं पे रिलेशनशिप जो कीवर्ड है वो किस लिए यूज होगा? रिलेशनशिप हम यूज करेंगे जब भी हमें डेटाबेस में दो एंटिटीज के बीच में लिंक क्रिएट करना है। जैसे स्टूडेंट टेबल हो गया और सब्जेक्ट का टेबल हो गया, तो मुझे स्टूडेंट और सब्जेक्ट के इन दोनों टेबल के बीच में कुछ रिलेशनशिप शो करना है, तो उसे हम ये एसोसिएशन कैसे शो करेंगे दो एंटिटीज के बीच में? विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए। जैसे मेरे पास अगर कस्टमर डेटाबेस टेबल है जिसके अंदर ये 4 कॉलम्स हैं, अकाउंट डेटाबेस टेबल है जिसके अंदर ये 2 कॉलम है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर एक कोई ना कोई ऐसी कॉलम होगी, जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी हो गया, वो यहाँ पर यूटिलाइज होगा, और इन दोनों टेबल के बीच में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप होगी। ठीक है, तो ये जस्ट एक बेसिक एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब जो एट्रीब्यूट्स मतलब ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है, जैसे टेबल के अंदर जो होते हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है। हम लोग इनमें से जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्कस कर ले एक बार। सबसे पहला है सिंपल। अगर कोई एट्रीब्यूट है, अगर कोई प्रॉपर्टी है डेटाबेस टेबल की जिसे हम आगे जाके ब्रेक नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं एटॉमिक एट्रीब्यूट है, उसे हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। जैसे मैंने आपको सिर्फ नेम बताया, ठीक है। अब नेम हमें पता है, नेम के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक तो उसका फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम। तो इस एट्रीब्यूट को हम सिंपल एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको अगर बताया फोन नंबर, ये मेरे डेटाबेस टेबल में एक कॉलम है, फोन नंबर को मैं आगे ब्रेक कर सकता हूं? नहीं, मैं ब्रेक नहीं कर सकता, ये मेरा परमानेंट है। वैसे अगर मेरे पास कोई कॉलम है ईमेल एड्रेस, ये एक मेरा एट्रीब्यूट है, ईमेल एड्रेस, इसको मैं और आगे स्प्लिट कर सकता हूं, मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे जो भी एट्रीब्यूट्स है जो एटॉमिक है, जिनकी वैल्यू हम आगे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, वैसे एट्रीब्यूट्स को हम सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट किसे कहेंगे? ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये नेम एट्रीब्यूट है, इसे मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कंपोजिट एट्रीब्यूट कहूंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नेम एट्रीब्यूट है वो हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, और एफ नेम एट्रीब्यूट है इसे मैं सिंपल एट्रीब्यूट कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट नेम को और मैं आगे ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 टाइप। थर्ड टाइप है हमारा सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट किसे कहेंगे? सपोज मेरे पास कोई एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू हमेशा एक ही वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने बोला एज, तो एक पर्सन का अगर मैंने रिकॉर्ड डाला, सपोज मेरे पास एक मैक्स नाम का स्टूडेंट है, तो उसकी एज या तो 20 होगी या 21। हम दोनों एज एक साथ इंसर्ट नहीं करेंगे डेटाबेस टेबल में। हम जब भी स्टोर करवाएंगे तो दोनों रिकॉर्ड एक साथ स्टोर नहीं करवाएंगे, कोई भी एक ही वैल्यू जाएगी एज कॉलम के अंदर। या एक पर्सन की एक ही एज होगी, या तो वो 20 होगा या 21 होगा, या 50 होगा या 60 होगा, कभी भी 2 एज एक साथ नहीं होगी एक पर्सन की। तो सेम यहाँ पर ऐसे एट्रीब्यूट या ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? सिंगल वैल्यूड। ठीक है, सिंगल वैल्यू, जैसे ये एज है, एज के अंदर हम सेम वैल्यू ही, एक ही वैल्यू डालेंगे हर यूजर के लिए। वहीं पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट किसे कहेंगे? ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। जैसे मेरे पास कॉलम नंबर है, या फिर एट्रीब्यूट नेम है फोन। फोन नंबर एक पर्सन का एक से ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर मैंने मैक्स नाम के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डाली, तो वहां पर मैक्स नाम के स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। वैसे ही मैक्स के पास ईमेल एड्रेसेस एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की या एक रिकॉर्ड की मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट हो सकती है, उसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास नल एट्रीब्यूट। नल एट्रीब्यूट मतलब अगर मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर डेटा, एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें मुझे पता नहीं है कि कैसा इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर करना है, मैं उसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो ऐसे केस में वहां पे कौन सा एट्रीब्यूट कहा जाएगा? वो
नल एट्रीब्यूट कहा जाएगा। सपोज मुझे पता नहीं है कि वहां पे वैल्यू क्या पुट करनी है, तो मैं वहां पे एम्प्टी छोड़ दूंगा, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्या स्टोर करवा देगा, नल वैल्यू स्टोर करवा देगा। नल दैट मींस एम्प्टी, नथिंग। ठीक है, तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक सिटी करके कॉलम है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है और सिटी में ब्लैंक छोड़ देता है, उसे ध्यान नहीं है कि एक्चुअल में सिटी क्या लिखे, करंटली वो बिलोंग करता है नोएडा से और वो स्टडी कर रहा है उत्तराखंड में हरिद्वार में, ठीक है, तो यहाँ पे वो सिटी क्या डाले वो कंफ्यूज है, तो उसने डाला ही नहीं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, यहाँ पे अपने आप null value insert हो जाएगी, that means nothing, he does not belong to any particular city। मे बी फ्यूचर में आप अगर जैसे पढ़ोगे एसक्यूएल हम पढ़ेंगे तो हम रूल्स और लिमिटेशंस देखेंगे और भी, लेकिन फिलहाल आप ये चीज ध्यान रखिए, नल किसे कहेंगे, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू पता नहीं है या हम डालना नहीं चाहते वहां पर वैल्यू, तब हम नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो वैसे एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं हम लोग, नल एट्रीब्यूट्स। ओके, उसके बाद आता है आपका नॉट एप्लीकेबल एट्रीब्यूट। नॉट एप्लीकेबल एट्रीब्यूट कहां पे आप डालोगे, जैसे जहां पे भी आपके पास कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जहां पर उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उस पर्सन की इंफॉर्मेशन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर सपोज आपके पास डेटाबेस टेबल में एक कॉलम है जिसका नेम है अपार्टमेंट नंबर, अब सपोज आप जो रह रहे हो आपका खुद का घर है, आपका अपार्टमेंट नंबर नहीं है, मतलब आप कोई अपार्टमेंट में नहीं रह रहे, आप कोई फ्लैट में नहीं रह रहे, आपका खुद का घर है, तो वहां पे तो हाउस नंबर आना चाहिए, अपार्टमेंट नंबर का क्या मतलब है। तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। तो ये नॉट एप्लीकेबल एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, वो एट्रीब्यूट्स जो एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, तो वहां पर हम नॉट एप्लीकेबल एट्रीब्यूट कहेंगे वैसे एट्रीब्यूट्स को। तो ये एट्रीब्यूट को हम नॉट एप्लीकेबल एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आपके पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, विच वन, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट किसे कहेंगे, हमारे डेटाबेस टेबल में जैसे हमें पता है डेट ऑफ बर्थ और एज, ये दोनों कॉलम रिलेटेड है, डेट ऑफ बर्थ है तो फिर उसके बेस पे मैं एज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सपोज मेरे डेटाबेस टेबल में आईडी, नेम और एज, ये तीन एट्रीब्यूट्स है, ये तीन प्रॉपर्टीज है मेरे एक टेबल की जिसका नेम है इन्फो। ठीक है, तो ऐसे में सपोज अगर मेरे पास, सॉरी, लेट्स से इंस्टेड ऑफ एज आई हैव डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर मेरे पास ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट की एज कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ऐसे में आपके पास थी डेट ऑफ बर्थ, आपने चेक किया कि भाई सिस्टम की डेट क्या है और उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो हर पर्सन की एज। तो ऐसे एट्रीब्यूट को कि भाई डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे हमने एज कैलकुलेट की, तो ऐसा कोई अगर एट्रीब्यूट है इसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, this is what derived attribute। So these are different types of attributes. See here I have not mentioned the explanation of these attributes, but I have just explained it to you, so you can try those, you can try to read on your own also some of these attribute types। Okay, all of these are the same one, simple, composite, single valued, multi-valued, stored, derived, null values, not applicable। stored values मतलब स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स उन एट्रीब्यूट्स को कहेंगे जो एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स एज, एज हमारी डिराइव्ड एट्रीब्यूट है क्योंकि वो डेटाबेस में स्टोर नहीं थी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है क्योंकि वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हुई थी। ठीक है, और जब उस स्टोर्ड वैल्यू के बेस पे हमने एट्रीब्यूट डिराइव किया। ओके, so these are some of the notifications or notations that are going to be used in ER diagrams। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट नोटेशंस हैं, जैसे स्क्वायर सिंबल है वो हम यूज करते हैं एंटिटी के लिए, डबल स्क्वायर अगर हमारी एंटिटी वीक है तो हम डबल स्क्वायर यूज करते हैं रिलेशनशिप मेंशन करने के लिए, वी यूज दिस डायमंड सिंबल, डबल डायमंड सिंबल वी यूज फॉर वीक रिलेशनशिप। फिर एट्रीब्यूट सिंगल ओवल सिंबल, की एट्रीब्यूट चाहिए तो उसमें जो वर्ड लिखोगे, जो भी एट्रीब्यूट होगा उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा। वैसे ही मेरे पास अगर वीक एंटिटी है तो यहाँ पे मैं डॉटेड ओवल सिंबल में मैं मेंशन करूंगा। इवन मेरे पास अगर डिराइव्ड एट्रीब्यूट है वो भी मैं इसके अंदर मेंशन करूंगा। ओके, दिस इज नॉट वीक एंटिटी, एक्चुअली इट इज फॉर डिराइव्ड।
दैट्स माय मिस्टेक. ओके, सो दिस इज फॉर डिराइव्ड एट्रीब्यूट. एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा वैल्यू वाले एट्रीब्यूट होंगे. जैसे अगर मैं सिर्फ नेम लिखता हूं तो आपको पता है नेम इज अ, सॉरी, आई इफ आई एम मेंशनिंग फोन नंबर, तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, तो वहां पर हम उसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल गिवन है, सी हियर. जैसे कस्टमर हो गया, ठीक है, कस्टमर हमारा एंटिटी हो गया, ये भी हमारा एंटिटी है जो स्क्वायर में है. रिलेशनशिप हम शो करना चाहते हैं, दैट इज यूजिंग डायमंड सिंबल. ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड ओवर हियर. ओके, और इनको हम लिंक कैसे करेंगे, प्लेन सिंपल लाइन से. अब यहाँ पर देखिए, ये कस्टमर आईडी ये ओवल के अंदर लिखा है, ये एट्रीब्यूट तो है, लेकिन अंडरलाइन सिर्फ इसी के अंडर है, बाकी किसी के अंडर पे नहीं है. दैट मीन्स दिस इज माई की एट्रीब्यूट. दिस इज माई की एट्रीब्यूट. वैसे ही इस डेटाबेस टेबल में ये हमारी की एट्रीब्यूट है. तो इस प्रकार से हम ईआर डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको, जैसे हम लोग और आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा ऐसे, जो आप अपने एंड पे अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उस ईआर डायग्राम्स को खुद क्रिएट करने की ट्राई कर सकते हैं. सी हियर, यहाँ पे एक गिवन है कस्टमर. ये कितना कॉम्प्लेक्स है आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एंटिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है. आप ये चीज जरूर चेक करिए. कस्टमर, दिस इज माय की एट्रीब्यूट. ये मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, क्योंकि हमें पता है कि फोन नंबर जो है उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है. ये मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में डिवाइड हो गया. और ये हमारे जो है, ये हमारे सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते. ठीक है, यहाँ पे भी ये देखिए, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये भी कंपोजिट एट्रीब्यूट. ये डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट है. और ये हमारा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि ये हमारे डेटाबेस टेबल का पार्ट नहीं होगा, लेकिन हम ये डिराइव कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हम ईआर डायग्राम्स मेंशन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज एंटिटी एंड रिलेशनशिप सेट. एंटिटी सेट किसे कहेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर मैं सेम प्रकार की एंटिटी एक ही उसमें डेटा में स्टोर करता हूं, देन आई कैन कॉल इट अ ओके, दिस वे, कि अगर मेरे पास सपोज एंटिटी सेट है, हम किसे कहेंगे, एक ही प्रकार का जो डेटाबेस टेबल्स हैं वो सारे मैं अगर क्लब करता हूं, इफ आई क्लब देम देन आई कैन टेल देम एन एंटिटी सेट. जैसे हर कॉलेज के स्टूडेंट टेबल की अगर इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूं, दैट मीन्स आई एम creating a student entity set. Okay, रिलेशनशिप किसे कहेंगे, रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज. हमें पता है कि रिलेशनशिप किसे कहेंगे, कि अगर एक से ज्यादा एंटिटीज या एक से ज्यादा एंटिटीज के बीच में कनेक्शन है, जैसे स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में, स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में, इन टेबल्स के बीच में रिलेशन है, देन वी कॉल इट अ रिलेशनशिप. ओके, और रिलेशनशिप सेट किसे कहेंगे, अगर आपके एक से ज्यादा एंटिटीज या एंटिटी सेट्स दे आर कंबाइंड टुगेदर और दे आर इन रिलेशनशिप, तो हम कह सकते हैं इट इज एन रिलेशनशिप सेट. यहां पर देख लीजिए एग्जांपल. देखिए यहां पर जैसे हमारे पास रिलेशनशिप सेट का एग्जांपल, एन एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी अ प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनशिप सेट. फॉर इंस्टेंस द डिपॉजिटर रिलेशनशिप सेट between entity sets customer and account may have the attribute access date. जैसे यहां पर है, ये मेरा एक एंटिटी है और ये मेरा दूसरा एंटिटी, इनका रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो. जैसे स्मिथ है, इसका रिलेशन A215 से भी है, यहाँ पर A201 से भी है, ऐसे करके मल्टीपल रिलेशनशिप है. ठीक है, अब ये जो डिपॉजिटर टेबल है, इसका भी खुद का अगर एक एंटिटी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, वी कॉल इट अ इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर. इट कैन हैव द एट्रीब्यूट एट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, दैट इज एक्सेस डेट. ये जो एक्सेस डेट है, ये डेट को मैं इस पर्टिकुलर डिपॉजिटर रिलेशनशिप का क्या बोल सकता हूँ, इसका प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ या इसकी एट्रीब्यूट बोल सकता हूँ. तो रिलेशनशिप सेट किसे रिफर करेंगे, जब भी एंटिटी सेट्स जो आपके हैं, आपके जो भी एंटिटी सेट्स हैं, दैट मीन्स कि आपकी एंटिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जब पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर यहाँ पर एक से ज्यादा एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होती है, वी कॉल इट रिलेशनशिप सेट. ठीक है, मोस्टली एक टेबल का रिलेशनशिप दूसरे टेबल से ही होता है. मोस्टली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट टेबल का रिलेशनशिप सब्जेक्ट टेबल से, या सब्जेक्ट टेबल का रिलेशनशिप फैकल्टी टेबल से. तो इस प्रकार से हम दो टेबल के बीच में ही रिलेशनशिप करते हैं, क्रिएट करते हैं. लेकिन अगर सपोज मैंने स्टूडेंट टेबल का रिलेशनशिप सब्जेक्ट टेबल से भी किया, स्टूडेंट टेबल का रिलेशनशिप मैंने फैकल्टी से भी किया, स्टूडेंट टेबल का रिलेशनशिप मैंने मार्क्स टेबल से भी किया, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एक से ज्यादा टेबल से हो गई.
ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, वी कॉल इट अ बाइनरी रिलेशनशिप। और अगर रिलेशनशिप दो टेबल से ज्यादा के बीच में है, देन इट कैन बी अ टर्नरी रिलेशनशिप और 4 डिग्री रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप सेट की जो डिग्री है वो क्या है, कितने टेबल्स के बीच में या कितने एंटिटीज के बीच में आपके यहाँ पे रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ लिंक बिटवीन दोज टेबल्स और दोज डेटाबेस टेबल्स, जैसे स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया या स्टूडेंट फैकल्टी हो गया। ठीक है, तो ये कौन से रिलेशनशिप टाइप कही जाएगी, टर्नरी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल जो है वो दो टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर रिलेशनशिप सेट के अंदर दो से ज्यादा टेबल है, देन वी कॉल इट टर्नरी रिलेशनशिप। चार है देन क्वार्टरनरी। ठीक है, इस तरीके से 5 डिग्री 6 डिग्री, इस तरीके से जितने टेबल्स होंगे आपका रिलेशनशिप सेट में, उसे हम उतने डिग्री अलोकेट करते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। मैपिंग कार्डिनलिटीज आपने ये भी पढ़ा होगा जब आपने मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ा होगा। तो फंक्शन में क्या होता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है दैट व्हाट इज वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो अगर एक डेटाबेस टेबल का रिकॉर्ड एक टेबल को लिंक करता है, वी कॉल इट वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। सी हियर, अगर आपके पास डेटाबेस टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, आपको पता है हर स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट से लिंक्ड होगा, इंग्लिश, मैथ, C++, समथिंग लाइक दिस। तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, तो ये रिलेशनशिप हम कौन सी कहेंगे, वन टू मैनी। ठीक है, वहीं पे अगर मेरे पास स्टूडेंट टेबल है और हर स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल्ड होगा, बीटेक, बीबीए, एमबीए, तो ये जो रिलेशनशिप है ये हम क्या कहेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप। तो जब हम ईआर डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं या ईआर डायग्राम्स या ईआर मॉडलिंग हम करते हैं, तो वहां पे हमें ये भी मेंशन करना होता है कि दोनों टेबल्स या दोनों एंटिटीज के बीच में किस प्रकार के रिलेशनशिप है, वेदर इट इज वन टू वन रिलेशनशिप, वेदर इट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू वन किसे कहेंगे, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉय। तो अगर मेरे पास सपोज प्रोजेक्ट आईडी है 1 2, तो हो सकता है एक से ज्यादा एम्प्लॉयज एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट मीन्स एक से ज्यादा एम्प्लॉयज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे इसे, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एम्प्लॉयज भी ज्यादा है, जैसे सपोज मैक्स नाम का एक एम्प्लॉय है, वो दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, फाइनेंस के प्रोजेक्ट पे, एचआर के प्रोजेक्ट पे। और एचआर डिपार्टमेंट है, सॉरी प्रोजेक्ट है, एचआर वाला प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कही जाएगी, ये कही जाएगी आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इट विल बी कॉल्ड, लेकिन वहीं पे अगर आपके पास सपोज एक अगर डेटाबेस टेबल है इस तरफ, इस प्रकार से, फैकल्टी टेबल, ठीक है, और आपके पास है स्टूडेंट, तो एक फैकल्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी। सो दिस इज व्हाट, वन टू मैनी। और अगर मुझे मैनी टू वन करना है तो इसका उल्टा, बहुत सारे स्टूडेंट एक फैकल्टी से पढ़ते हैं, सो दैट विल बी टर्म्ड एज मैनी टू वन रिलेशनशिप। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, मैपिंग कार्डिनलिटीज। वही यहाँ पर डिस्कस किया आपने ऑलरेडी, ये चीज फंक्शन जब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वहां पे आपने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की होगी, तो आपको इसका बेसिक आइडिया है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूटिलाइज हो रहा है हमारे फंक्शंस, यहाँ पर डेटाबेस टेबल्स के बीच में। See here, one to one, that means it will be associated with each record from another table. One to many, that means one record may be attached with more than one record. This is like our subject. Okay. Similarly, many to one, जैसे एक से ज्यादा स्टूडेंट एक फैकल्टी से अटैच्ड है, that can be termed as many to one. And the employees and project example that I just gave you, that can be termed as many to many, many to many constraints. Okay, so now we come to
almost the conclusion of our PPT, that is keys. What are different keys? Okay, so keys are a super key. First of all, why these keys are needed? As I said, that key is an attribute which is used to identify records in a database table. आपके entity में या database table में जब भी आपको हर records को identify करना है तो हम वो key की help से कर पाते हैं. ठीक है, तो की जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलम हो. कई बार ऐसा होता है कि की एक से ज्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. तो वहां पर हम उस पर्टिकुलर की को किस किस प्रकार से बुला सकते हैं. तो सबसे पहला है सुपर की. सुपर की किसे कहेंगे? अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट और a single attribute or a set of attribute which are able to uniquely identify the records in our database table can be termed as super key. आपके database table में एक single attribute ले लो या फिर set of attribute, multiple attributes को combine करके अगर आप हर records को uniquely identify कर सकते हो तो हम उसे super key कहेंगे. Then what is the candidate key? अगर आप उस super key को break down करके उसका जो smallest key है, की एलिमेंट है जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हर रिकॉर्ड्स को डेटाबेस टेबल में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैंडिडेट की. यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए. सपोज मेरे पास एक डेटाबेस टेबल है, दिस वन. ठीक है, एक मेरे पास डेटाबेस टेबल है. दिस इज आईडी, नेम, एज, ईमेल. ओके, ईमेल, देन आई हैव पैन कार्ड, समथिंग लाइक दिस. नाउ आई हैव दिस इंफॉर्मेशन. तो मैं सपोज आईडी और नेम, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों का कंबाइन करके मैं अगर हर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करता हूं कि भाई किसी भी रिकॉर्ड में आईडी और नेम ये दोनों यूनिक होंगे, तभी हम उसके बेसिस पे हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे. तो यहां पर हम इसे क्या कहेंगे? सुपर की. लेकिन अगर इस सुपर की को मैं ब्रेक डाउन करता हूं और सिर्फ इस आईडी नंबर से अगर आइडेंटिफाई करने की ट्राई करता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं. तो यहाँ पे ये जो आईडी नंबर है वो क्या कहा जाएगा? कैंडिडेट की. It will be called candidate key. So candidate key is what? Candidate key is minimal super key, and in another terms candidate key is the subset of super key. ठीक है, सो हमने सुपर की डिफाइन किया, हमने कैंडिडेट की डिफाइन किया. थर्ड टर्म इज प्राइमरी की. अब हमारे पास सपोज डेटाबेस टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की, सॉरी एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है. जैसे मैं आईडी के बेस पे हर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ईमेल कॉलम के बेस पे भी हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और पैन कार्ड के बेस पे भी मैं हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि हर पर्सन का पैन कार्ड यूनिक होगा, ईमेल यूनिक होगा, आईडी नंबर भी यूनिक होगा. तो ऐसे में ये तीनों मेरे क्या कहे जाएंगे? ये तीनों को मैं कह सकता हूँ कैंडिडेट की. ठीक है, मेरे पास 3 कैंडिडेट की है जिनकी हेल्प से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ हर रिकॉर्ड को. अब इन 3 कैंडिडेट की में से मैं जिसे चूज करूंगा एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिजाइनर, मैं जिस की को चूज करूंगा एज अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट कि हाँ भाई मैं इसकी हेल्प से हर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो वो मेरी प्राइमरी की बन जाएगी. सपोज मैंने इसे चूज किया तो ये मेरी प्राइमरी की बन जाएगी, या फिर मैंने इसे चूज किया तो ये मेरी प्राइमरी की बन जाएगी. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक डेटाबेस टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, चाहे आप वो आईडी को चूज करो, ईमेल को चूज करो या पैन कार्ड को चूज करो. ठीक है, तो आईडी अगर मैंने आईडी एज अ कैंडिडेट की जो थी, इसे मैंने अगर चूज किया कि हाँ भाई इस एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा, तो ये मेरी प्राइमरी की बन गई. तो बाकी की जो कैंडिडेट कीज बची हुई थी, जो प्राइमरी की नहीं बन पाई, उन्हें हम सेकेंडरी की या फिर ऑल्टरनेट कीज कहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? हम सेकेंडरी कीज या फिर ऑल्टरनेट कीज कहते हैं. ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट की. जब मैं एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे प्राइमरी की मेरी सिंगल एट्रीब्यूट है, मैं एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को कंबाइन करके उसे मैं अगर प्राइमरी की डिक्लेयर करता हूँ रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं उसे उसे मैं कहूंगा कंपोजिट की. सपोज यहाँ पे मैंने ईमेल और पैन कार्ड को आइडेंटिफाई कर दिया. ये जो प्राइमरी की मैंने डिक्लेयर किया था, ये प्राइमरी की मैं इसे डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ईमेल और पैन कार्ड, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने कहा ये मेरी प्राइमरी की है. तो ये दोनों कंबाइंड मुझे, इन कीज को मैं क्या कह सकता हूँ? कंपोजिट की. इट विल बी कॉल्ड कंपोजिट की.
ठीक है, तो की, हम अगर की बात करते हैं तो की हम उसे कहेंगे कि जो एट्रीब्यूट की हेल्प से हम हर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसे सुपर की कह दो, प्राइमरी की कह दो, कैंडिडेट की कह दो, सब की डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट वन इज फॉरेन की। फॉरेन की हम कब यूज करते हैं? जब हम दो डेटाबेस टेबल के बीच में रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं, तो एक टेबल की प्राइमरी की हम दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली आइडिया आएगा। लेकिन ये जो डेफिनेशंस हैं, सुपर की हो गई, कैंडिडेट की हो गई, अल्टरनेट की हो गई, सेकेंडरी की हो गई, कंपाउंड या कंपोजिट की हो गई, इन सब के बीच में डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दिस इज नॉट नीडेड questions. Yes, so these are some of the questions from this particular unit or topic. The entity relationship set is represented in ER diagram as, अगर मैं entity relationship set entity के बीच में रिलेशनशिप शो करना चाहता हूं तो वो कौन से डायग्राम से मैं शो करूंगा? दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप अगर मुझे शो करना है ईआर मॉडल में, ईआर डायग्राम्स में, तो मैं कैसे शो करूंगा? सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी डैश्ड लाइंस? No, the answer will be this one, D, diamond. This will be the answer for your this question. Second one, an entity set that does not have sufficient attribute to form a primary key is termed as, अगर आपके पास कोई एंटिटी सेट है, आपके पास डेटाबेस टेबल है, उसमें अगर आपके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है टू क्रिएट अ प्राइमरी की, अगर मोस्टली हम जब भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हमारे पास हमेशा हम कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट रखेंगे जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सोचिए कि आपके पास ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें आप प्राइमरी की क्रिएट नहीं कर सकते, तो ऐसे एंटिटी सेट को क्या कहेंगे? हम ऐसे एंटिटी सेट को कहेंगे वीक एंटिटी सेट। अगर आपने ये चूज किया था देन यू आर करेक्ट। ओके, थर्ड वन, if you were collecting and storing information about your music collection, an album would be considered a, अगर आप अपने म्यूजिक एल्बम के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो डेटाबेस में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एल्बम को आप क्या कहोगे? आप उसे रिलेशन कहोगे, उसे एंटिटी कहोगे, उसे इंस्टेंस कहोगे या एट्रीब्यूट कहोगे? रिलेशन, एंटिटी, इंस्टेंस, एट्रीब्यूट, व्हाट? यस, द करेक्ट आंसर इज एंटिटी। द करेक्ट आंसर इज एंटिटी। ओके, सो last two questions. An entity in A is associated with at most one entity in B, and an entity in B is associated with at most one entity in A. This is called as, ऐसे एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप जो है उसे हम क्या कहेंगे? जैसे दो एंटिटीज है, यहाँ से हर एलिमेंट वहां के एक एलिमेंट से रिलेटेड है और वहां का हर एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी मैपिंग इट विल बी कॉल्ड one to one relationship. If you have chosen this one, it's a correct answer. Which one of the following uniquely identifies the elements in a relation? कौन uniquely identify करता है हर records को? Yes, it's a very simple question. Answer will be primary key. So we will stop over here for today. Hopefully we will see next lecture. We will try to wrap up this first unit's topics by discussing about how ER diagrams can be broken down to create actual database tables. We will discuss those topics in our next part, and we will try to wrap up this whole first unit. Okay, so just go through these topics that we have discussed till now and see you in the next lecture. Thank you very much.